This is an example of a spanning tree. The edges in the dark, they represent a spanning tree, and the edges that are dark and light, both they represent the original graph. So what we have done is that all the edges with the dark edges, हमने उनके weight का sum कर लिया है, cost का sum कर लिया है. That we consider to be the cost of the spanning tree. लेकिन क्या वो cost minimum है? I doubt, and I don't think that is the minimum. So our objective is to create a spanning tree which has a minimum cost, and that is called the minimum spanning tree. For that, we have two types of algorithms. One is given by the Prim's and the other one is given by Kruskal. So first of all, we will see what is Prim's algorithm. Prim's algorithm is follows the greedy approach. So what we are given is a graph is an adjacency list is given. So we are going to use that adjacency list to find out the solution. The time complexity of the Prim's algorithm has already been given as E log V. Okay. So what does this algorithm says? So algorithm says is कि हमें कोई भी अगर एक given graph है, तो सबसे पहले पूरी algorithm को यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं. So I minimize this out. So very easy algorithm. The main reason is that it is a greedy algorithm. So what greedy algorithms are easy to construct. तो हमें सबसे पहले एक एलिमेंट R को निकालना है. R can be any vertex, any starting vertex. Initially there will be a set which is known as S of all vertices जिनको हमने फाइनल कर दिया है, finalized vertices हैं. तो initially S क्या होगा? S will be null, खाली. The second one is, the third one, sorry, is V intersection S, which means all the vertices minus the processed vertices, या जिनको हमने final मान लिया है. And the fourth one is called the A. A represent all the selected edges. तो हमारे पास चार चीजें हैं. एक है S, which means all the final vertices. Then R is any one vertex जिससे हम लोग start करते हैं. V intersection S is all the vertices minus the vertices which have been selected. And A is the set of all the selected edges. तो हमें करना क्या है? सबसे पहले कोई भी एक रैंडम वर्टेक्स को उठाना है, उसको S के अंदर ऐड कर देना है. क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक वर्टेक्स ही S के अंदर डाला है, तो अभी तक कोई एज डिसाइड नहीं हुई है. सो दैट विल बी नल. अब हमें करना क्या है? हमने जिस R एज को ग्राफ S के अंदर डाला है, उसके साथ जितनी भी कनेक्टेड एजेस हैं, उसमें से उस एज को सेलेक्ट करना है विच इज लाइटेस्ट. लाइटेस्ट मींस जिसका कॉस्ट सबसे कम है. अब हमें जैसे ही वो मिल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस एज को हम लोग ए के अंदर डाल दें, और उस एज का जो सेकंड एंड पॉइंट है, सेकंड एंड पॉइंट मींस जहां पर वो कनेक्ट होती है, उसको हम लोग एस के अंदर डाल देंगे. एंड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम वी अंडरस्कोर एस. ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा टोटल कॉस्ट जो है फॉर एवरी एज कैलकुलेट ना हो जाए. दैट इज वी इंटरसेक्शन एस जो है वो नल नहीं हो जाती है. तो I think it looks a little confusing, but it is because अभी तक हमने इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं किया है, शायद इसलिए ये कंफ्यूजिंग लग रहा है. Now we are going to do an example of the same, and it will look slightly easier. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है.
So I'll take this example in a very fast track mode. तो let's say initially r is equals to a, यानी हम लोग a से स्टार्ट करेंगे। तो s के अंदर क्या चला जाएगा, a। तो s सेट के अंदर चला जाएगा a। जो हमारा पाथ वाला सेट है दैट इज a। अभी तक हमने कोई भी एज सेलेक्ट नहीं की है, तो दैट विल बी नल। s इंटरसेक्शन सॉरी, हाँ, दैट इज v इंटरसेक्शन s। तो कौन कौन सी एजेस टोटल हैं और s में कौन कौन सी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो हमारे पास टोटल एजेस थी a b c d e f एंड g। हमने सबसे पहले a सिलेक्ट कर ली है, तो हम लोग यहाँ से a को रिमूव कर देंगे। नाउ प्लीज चेक विच इज द लाइटेस्ट एज विच इज कनेक्टेड टू a। एक तो हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 8 है। तो इसमें से सबसे लाइटेस्ट कौन सी है, बी। तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस पाथ। हम लोग इस पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे, ए ऑलरेडी एस के अंदर था, तो हम लोग इसके अंदर बी को भी डाल देंगे, बी को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ए के अंदर हमने डिसाइड कर लिया है दैट द एज इज ए टू बी। Now we are going to consider all the edges जिनका एक एंड पॉइंट A या B होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, A को कनेक्ट करती है ये वाली एज विच इज 8, B को कनेक्ट करती है ये वाली एज विच इज 9, एक कनेक्ट करती है ये वाली और एक कनेक्ट करती है ये वाली। इसमें से दो एजेस हैं 8 वाली, तो हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करनी है। तो लेट अस सपोज वी सेलेक्ट दिस वन। So let's add D into the set of S, and D will be removed from V intersection S, और हमारी जो edge select हुई है that is B to D। तो next अब A, B and D को कनेक्ट करने वाली एजेस देखेंगे। उसमें से देखेंगे कि सबसे लाइटेस्ट कौन सी है। बहुत इजी है, दिस इज द लाइटेस्ट एज, बिकॉज इसकी जो कॉस्ट है 2 है और किसी की भी कॉस्ट इतनी कम नहीं है जो ए एंड बी एंड डी को कनेक्ट करे। तो हमारा जो नेक्स्ट पाथ है दैट इज दिस वन। दिस मीन्स वी हैव सेलेक्टेड सी। सी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड इट विल बी लाइक सी टू डी। नेक्स्ट ए बी डी सी में सबसे लाइटेस्ट एज अब नई कौन सी है, दिस वन, बिकॉज इट्स कॉस्ट इज ओनली 1, सो दैट मीन्स वी सेलेक्ट दिस पाथ। तो यहाँ पर हमने F को ऐड कर दिया है, F को यहाँ पर रिमूव कर दिया है और यहाँ पर C to F को डाल दिया है। अब हमारे पास बचा है G एंड E। तो अब हम देखेंगे कि सबसे लाइटेस्ट कौन है। सबसे लाइटेस्ट 9, 7, 10, 5, 6 एंड 2 में सबसे लाइटेस्ट 2 है। दैट मीन्स वी सेलेक्ट दिस F2 G. So G is added to S. G is removed from the F intersection S, and the path we have selected is F to G. So only E is left. Check the cost. The minimum cost out of 10, 7, 6 and 5 is 5. So that is it. So we are going to add E to this. This will be removed and the final edge is F to E. So as you can see that F intersection S becomes empty. That means that is the end of it. And what is the total path? The total path is the edges A to B, B to D, C to D, C to F, F to G and F to E. And what is the total cost of this? The total cost of this is 4, which is A to B. Next is B to D, which is 8. Next is C to D, which is 2. C to F is 1. And F to G is 2 plus 5, which is equals to 4 plus 8, 12, 14, 15, 17, and 5. It is equal to 23. Now just let us verify whether this is the answer, whether this is the correct answer. You can see that this is how we are following: A to B to D. Next should have been C. Next should have been F.
next should have been G, and the last one should have been F to E, and the total cost is 23. So this is the Prim's algorithm, very basic algorithm. Put one vertex into the set and then search for all the vertices in the set S with the lightest edge. So that is the end of the first algorithm. The second is the Kruskal's algorithm. Now Kruskal's algorithm also comes under the greedy algorithm. अब greedy का मतलब क्या है कि we are finding a suboptimal solution. इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हम solution निकाला है हमने, that is the best solution. So the focus is on the local optimum and hopefully that will also be the ग्लोबल ऑप्टिमम. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब कंसिडर करते हैं कि किस एज को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग पास वाली जो कनेक्टेड एजेस हैं सिर्फ उन्हीं को दिमाग में रखते हैं, ना कि बाकी की एजेस को. क्रुस्कल एल्गोरिथम इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम. क्रुस्कल एल्गोरिथम कहती है कि सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई वेट, यानी सारी की सारी एजेस को आप सॉर्ट कर दीजिए, उन एजेस को सेलेक्ट कीजिए जिनका लोएस्ट वेट है, और तब तक कंटिन्यू करते जाइए जब तक आपका स्पैनिंग ट्री नहीं बन जाता है. लेकिन जब आप एक एज को सेलेक्ट करेंगे तो आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप उस एज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं जिससे साइकिल बन जाए. हम लोग ऐसी कोई भी एज को इग्नोर करेंगे जिसके कारण साइकिल बनता है. उसका रीजन क्या है? A spanning tree has a property that a spanning tree does not contain any cycles. So what we will do is we will keep adding the edges until we reach all the vertices. यानी जब तक spanning tree नहीं बन जाता है हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे. What is the complexity of this algorithm? The complexity of this algorithm is E log and B. Now this is the, you can say, graph given to us, and what we are supposed to find is the minimum spanning tree. So a spanning tree with the minimum cost. तो यहाँ पर start करते हैं students. So what we have is two edges जिनका जो cost है वो same है, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इन दोनों का cost same है, तो हम इन दोनों में से किसी भी एक edge को select कर सकते हैं. तो मान लीजिए हमने ये वाली एज को सेलेक्ट कर लिया है, द कॉस्ट इज 2. अब जो बाकी एजेस बची हैं उसमें से मिनिमम कौन सी है? नेचुरली द सेकंड वन जिसको हमने छोड़ा था, अब हम उसको ले लें, दैट इज 2. अब इसके अलावा हमारे पास 3 एजेस हैं जिनका जो कॉस्ट है वो सेम है. दिस इज द सेकंड सेट ऑफ एजेस जिनका कॉस्ट सेम है. तो हमें इनमें से सिर्फ एक एज को उठाना है. तो हम फ्री हैं, विच एवर वी वांट टू चूज. लेट अस सपोज दैट वी चूज दिस वन. साथ साथ में ही हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अब हमारे पास सिर्फ 2 बची हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. अब इसमें से हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो let us suppose we select this one. Now we are only left with this one. But हम इसको select नहीं कर सकते हैं. इसको select इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर मैंने इसको select किया तो इस तरह से बन जाएगा, and that will be a cycle, और हम साइकिल नहीं बना सकते हैं. फर्दर जिस नोड को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों नोड्स जो रिप्रेजेंट की जा रही हैं इस एज के साथ वो ऑलरेडी इस ग्राफ के अंदर आ चुकी हैं. तो हम लोग इस 3 को सेलेक्ट नहीं करेंगे. अब बाकी बची 4. सबसे पहले ये वाली, दिस वन एंड दिस वन. इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये जिन 2 वर्टिसेस को जोड़ रहा है they are already in the selected minimum spanning tree और साइकिल बन सकता है. तो बाकी बची 2, एक ये वाली और एक ये वाली. आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट, दैट इज
4. So what is the cost of the minimum spanning tree? बन चुका है. The cost is 2 plus 2, that is 4. 4 plus 6 is 10 plus 4 is equals to 14. How many edges are there? 1, 2, 3, 4, 5. It should be one less than the total number of vertices. So total number of vertices should be 6. That is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this is our final solution. So let us see if this is the actual solution as well. So this is step-by-step construction. Exactly, this is the solution. The only difference is कि we selected one on the top and they have selected one from the bottom. अगर मैं इसकी totaling करता हूं तो the totaling is 40. So students, this is the two algorithms for the minimum spanning tree that we have discussed, other than what is the greedy approach. हमने सबसे पहले greedy approach किया. Greedy approach होता क्या है? हमने greedy approach में ये बताया कि that all problems cannot be solved with a greedy, but there are a category of problems for which the greedy algorithm can be implemented. ग्रीडी एल्गोरिदम लोकल ऑप्टिमम में ही रहती है. वो पूरे के पूरे यू कैन से एड्रेस स्पेस में सर्च नहीं करती है सॉल्यूशन को. जो भी इमीडिएट बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है वो उसको कंसीडर कर लेती है, व्हिच मींस दैट द रिजल्ट्स विल बी फास्टर बट दे विल नॉट बी द बेस्ट. दे माइट नॉट बी द बेस्ट. कई बार तो बिल्कुल ही गलत रिजल्ट्स भी आ सकते हैं. तो दैट मींस वी कैन नॉट फाइंड अ ग्रीडी अप्रोच फॉर ऑल द एल्गोरिथम. तो अब हमने उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम की? MST, दैट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. हमने समझा कि व्हाट इज स्पैनिंग ट्री एंड देन व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, फॉर व्हिच वी डिड टू एल्गोरिथम. वन इज गिवन बाय Prims and one is given by Kruskal. So I want you to absorb these today. I will send you the notes and the video immediately. So I request you both to go through these and not be in a hurry. ठीक है. And